في كل ساعة قائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه وارزقه توعا وتمتعه فيها تبديلا. اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فعددنا بثالث فقالوا إنا إليكم مسلمون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذكر الله إن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء ندركهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله عظما إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متقون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ولم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وتسلها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله ببعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا الله قلت وعليك السلام يا قرتين وثمرة فؤادي فقال يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة
فإنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله. فتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. ما كانت إلا ساعة عيسى بولدي الحسين. فأقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين والثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله. فتعزم لي أن أكون معكما تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أحسنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صل على محمد ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. قلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتعزم لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. تأذن بي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء فزا بي رسول الله بطرف الكساء وقوما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، ولكل ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا عرضا مبنية ولا قبرا مدير ولا شمسا مدية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط للأرض ليكون معهم سادسا؟ قال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا أيها الأعلى. السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منير ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أكون معكم. فهل تعلم لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. قال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نبي.
ما ذكر قولنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووقت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا يتفرقون. قال إن سوى الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني برسالة نجي ما ذكر حقنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. والله يفوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. उदासी रह गई एक उदासी रह गई है मोम शहर के एक उदासी रह गई रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई क्या रहा है में शहर की एक उदासी रह गई छीन का था शिमर चादर और ज़ैनब बार बार छीनता था शिमर चादर और ज़ैनब बार बार चादर के मुहावरे वो बुलाती रह गई क्या रहा है मुँह में शहर एक उदासी है मुसलमानों तुम्हारी गैरते क्या हो गई है मुसलमानों तुम्हारी गैरते क्या हो गई तमाशाई से ज़ैनब छुपाती रह गई क्या रहा है मुँह में शहर एक उदासी रह गई कैद में बाली सकीना को मिला बाबा का सर कैद में बाली सकीना को मिला बाबा का सर रख कर जो सो गई जगाती रह गई क्या रहा है वो विषय एक उदासी हर तमाचे पर सकीना मुंह पे रख कर नन्हे हाथ हर तमाचे पर सकीना मुंह पे रख के नन्हे हाथ तीर रुख सारों के गाजी वो दिखाई रह गई क्या रहा है में शहर के एक उदासी रह गई आ गए रेहानो सरवर
करबला से लौट कर आ गए रेहानो सरवर, करबला से लौट कर आज तक खुशबू बदन में करबला की रह गई। है मुँह में शहद एक उदास। बताओ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد सदारंग से देखी थी एक लाश बेसन, इधर आ इधर आ सकीना सकीना, ये दावे यकीनी है तेरा मुकद्दर, इधर आ सकीना सकीना, इधर आ कले जैसे अपने लगा लूं, इधर आ मेरी जान मैं तुझको सुनाऊं, इधर आ कलेजे से अपने लगाऊं, इधर आ मेरी जान मैं तुझको सुनाऊं, इधर आ मेरी जान मैं कुर्बान तुझे पर, इधर आ सकीना सकीना। ये सुनसान सहरा ये वीरान जंगल, गजब का अंधेरा ये खामोश मातम, न घबरा चली आ संभल कर इधर आ सकीना सकीना। तुझे देखना है मेरा जख्म खंजर, तुझे देखना है मेरी लाश बेसर, तुझे देखना है मेरा जख्म खंजर, तुझे देखना है मेरी लाश बेसर, तुझे देखना है ये दिल सोज मंजर, इधर आ सकीना सकीना। रुलाएगी तुझको बहुत याद मेरी, सुनेगा न कोई भी फरियाद तेरी, रुलाएगी तुझको बहुत याद मेरी, सुनेगा न कोई भी फरियाद तेरी, सताएगा रास्ते में शिमरे सितमगर, इधर आ सकीना सकीना। अब अंदाज बदले सोने का तेरे, सुलाएगी आगोश में तुझको आदर, अब अंदाज बदलेगा सोने का तेरे, सुलाएगी आगोश
में तुझको मादर, यहाँ मेरे सीने पे सोएगा असगर, इधर आ इधर आ सकीना सकीना। वकारे हदी क्या गया हूँ मंजर, जो देखा था उसने कहूँ अब मैं क्यों कर। बड़ी जब सकीना ये आवाज सुनकर, बड़ी जब सकीना ये आवाज सुनकर, इधर आ इधर आ सकीना सकीना। सदारन से देखी थी एक लाश बेसर, इधर आ इधर आ सकीना सकीना। मुख्तसर आलम साहब का कुछ अशार में उससे स्टार्ट करते हैं। शरफ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है, शरफ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है, जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है, जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है। हुजूर शाफी महशर अली कहे कि ये शख्स, हुजूर शाफी महशर अली कहे कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है, गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। सलवात सलाम। जरा पूछिए मेरे फुरात से पहले, जरा ये पूछिए मेरे फुरात से पहले, जरा ये पूछिए नहरे फुरात से पहले कि मौत आ गई इसको हयात से पहले, कि मौत आ गई इसको हयात से पहले। जरा बता दे वो तनवीर नूर कैसी है, जरा बता दे वो तनवीर नूर कैसी है। अली को देखने वाले हयात से पहले, अली को देखने वाले हयात से पहले, अली वो है जो खुदा के वजूद से हट कर, अली वो है जो खुदा के वजूद से हट कर, कोई वजूद न था जिसकी जात से पहले, जरा पूछिए मेरे फुरात से पहले,
गुनाहगार हूँ, लेकिन बस एक सूरत है, गुनाहगार हूँ, लेकिन बस एक सूरत है, पुकार लूंगा अली को निजात से पहले, पुकार लूंगा अली को निजात से पहले। वफाए हजरते अब्बास से ये नामुमकिन, वफाए हजरते अब्बास से ये नामुमकिन, अलम जमी पर आ जाए हाथ से पहले, अलम जमी पर आ जाए हाथ से पहले। तमाम निगाहों का ले गए अकबर, तमाम नूर निगाहों का ले गए अकबर, नजर में शकी अंधेरा था रात से पहले, नजर में शकी अंधेरा था रात से पहले, न पूछिए के सकीना के दिल पे क्या गुजरी, न पूछिए के सकीना के दिल पे क्या गुजरी, सरे हुसैन जो देखा वफात से पहले, सरे हुसैन जो देखा वफात से पहले। वो खुश नसीब जिसको बेकार मिल जाए, वो खुश नसीब है जिसको वकार मिल जाए, गमे हुसैन गमे कायनात से पहले, गमे हुसैन गमे कायनात से जरा पूछिए मेरे फुरात से की मौत आ गई, इसको याद से आवाज बुलंद सलवा मोहम्मद
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القاسي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. السلام عليك يا رحمة الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلى الله عليه ये अय्याम बहुत ही अजीम और बाबरकत अय्याम हैं कि जिसमें ये नसीब होता है इंसान को कि हमें इमाम हुसैन के कातिल बख्श अज़ा अपने अपने घरों में बिछा सके। ये हालांकि ज़माने में आजकल देखा जाए कई सारे ऐसे मिलते हैं जिनसे अगर कहा जाए तो टाइम नहीं मिल पाया, इसके खातिर मजालिसों में शिरकत नहीं कर सके या अपने काम में बिजी थे जिसकी वजह से हम मजलिसों में नहीं जा सके। लेकिन कहते हैं कि मौलाना हमने कोई कसर नहीं छोड़ा, भले गाड़ी में रहे लेकिन अपने मजलिसें सुनते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, मसला हर चीज़ का अपना अपना एक दर्जा है। तो हमें इमाम हुसैन में आंसू बहाना अपनी जगह, फर्श अज़ा की कीमत अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं है कि जो गम जो मसाइब आपने सुन के आंसू बहाए होंगे उसका अपना अजर है। लेकिन मसला फील करने का है। देखिए एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि फर्श अज़ा के मसले में ये एहसास करना। अच्छा, कुरान की आयत में पेश करूँ, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वहुम ला यशऊरून। लोगों में बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पे ईमान लेके आए, वमा हुम बिमुमिनीन, ये लोग ईमान नहीं लेके आए। कौन कह रहा है?
परवरदिगार आलम कह रहा वो लोग ईमान नहीं लेके आए। ये कर क्या रहे हैं? युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान लाने वालों को धोखा दे रहे हैं। वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम, ये किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे मसला इस्लाम और ईमान का ये है कि जब इंसान जबान से कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये इस्लाम है। इसीलिए क़ालतिल अअराबु आमन्ना वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिहिम। ए रसूल, जब बाज अरबियों ने आके कहा कि हम ईमान लेके आए, तो अल्लाह ने कहा है रसूल कह दो इस्लाम लेके आए, ईमान नहीं लेके आए, क्योंकि ईमान अभी तुम्हारे दिलों में उतरा नहीं है। तो ईमान, इस्लाम जबान में रहने वाली चीज है और ईमान दिल में उतरने वाली चीज होती है। अच्छा, इन दोनों की पहचान ये होगा, इंसान जब बोलता है तो इस्लाम की पहचान होती है, अब जब करता है तो ईमान की पहचान होती है। जबान से इस्लाम का इकरार होता है, दिल से, कैरेक्टर से ईमान का आप जो है ईमान की पहचान होती है। इसलिए वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, लोगों में बाज लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पे ईमान लेके आए। ये कौन लोग हैं? युखादिऊन अल्लाह वमा हुम बिमुमिनीन, ईमान नहीं लाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहते हुए तो सुना कि तुमने अल्लाह और आखिरत पे ईमान लाया, करते हुए दिखाई नहीं दिया कि तुम अल्लाह और आखिरत पे ईमान लाते हो। तो कैरेक्टर बताएगा ये किस तरह से, कि जब इंसान फील करता है, जात इलाही महसूस करने का नाम है कि इंसान कहीं भी रहे इस चीज को महसूस करे कि जैसे कुरान की आयतें मिलती हैं, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या ये लोग नहीं जानते कि इनको खुदा देख रहा है। तो ये जो फील रखता है उसे ईमान कहते हैं। मसला फर्श अज़ा का भी यही है। हम लोग कहते हैं ये जानते सब हैं कि फर्श अज़ा पे शहजादी तशरीफ लाती हैं, जानना अलग चीज है, लेकिन इंसान जब फील करता है तो तब वो ईमान होता है। वरना तो फिर एक इस्लामी दर्जा रखता है कि भाई हम जानते हैं। मैंने कहीं बताया था कि फर्श अज़ा का मतलब, अगर गलियों में खड़े होके कोई सुन रहा है, जगह अंदर रखते हुए, गाड़ियों में चल के सुन रहा है, कहीं बैठ के ऐसी सुन रहा है, और बाज लोग कौन सा जाकिर है देख के निकल जाते हैं, भाई फर्श अज़ा जाकिर से जुड़ा हुआ नहीं है। फर्श अज़ा की अहमियत जाकिर की वजह से नहीं है, शहजादी के वजूद की वजह से होती है। तो लिहाजा जब आए तो फर्श अज़ा, अच्छा इसकी अहमियत इतनी अजीम है कि मलाइका आपस में झगड़े करते हैं कि इस बार तुम जाओगे हम जाएंगे, और उसकी खुशबू सुन के ये कहते हैं कि किस जगह से आए कि इतनी जबरदस्त खुशबू आती है। तबरुकात इमाम हुसैन के लिए मलाइका यहाँ पे। तो आपको ये जो मसला, मिसाल के तौर पे मजलिस इमाम हुसैन से गुनाहों की माफ़ी है, घरों में बरकत है, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हैं फर्श अज़ा से। अगर फर्श अज़ा को ये ईमान रखते हुए अगर इंसान आके बैठे तो यकीन माने, देखिए फाक़िदुश शै ला युती, क्या वजह है कि हमने इसको बाहर के दुनिया तक पहुंचाया नहीं। कि भाई क्या कभी ऐसा हुआ कि हमने किसी हिंदू को ला के फर्श अज़ा पे बिठाया ये कह के कि यहाँ दुआ मांगो कबूल हो जाए? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी मरीज को ला के फर्श अज़ा पे बिठाया गया कि यहाँ दुआ मांगो तुम्हारा मरीज शिफायाब मिलेगा? क्यों? क्योंकि जब घर वाला, अब मैं मिसाल अगर दूं कि भाई अगर कोई बच्चा है, उसका भाई जो है बेहतरीन डॉक्टर है, वो अपने भाई के पास जा नहीं रहा, किसी और जगह जाता है, और दूसरे किसी से कहता है कि भाई हमारे भाई के पास दिखा लो। वो कहेगा जब तुम ही जाते नहीं मैं क्यों जाऊंगा? जब घर का आदमी ही घर के डॉक्टर से ना दिखाए तो फिर बाहर का आदमी कैसे जाएगा? तो अजीजान गिरामी, मसला फर्श अज़ा का
हमारे अंदर ईमान के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान लाने वालों ईमान लाओ, इजाफे की जरूरत है, अपने ईमान के दर्जात को बढ़ाने की जरूरत है। जब हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम खुद फर्श आज़ाद से वो पालें जो हम दूसरों को बताएंगे, चाहे वो दुआ की कबूलियत हो, चाहे वो शिफायाबी हो, या बहुत सारी चीजें जो बरकतें हैं, अगर उस फर्श आज़ाद से हम हासिल कर लें तो फिर हम इसको दूसरे को जाके बता सकते। तो अजीज़ान इकराम, ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं फर्श आज़ाद से, बहुत बड़ी अहमियत है, और यहाँ से यकीनन बरकतें और मग़फ़िरत का तमाम चीजें मिलती हैं, लेकिन ईमान होना चाहिए। बगैर ईमान के नतीजे आपको, या आमनो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र है, तमाम इंसान, खुदाया मल्टी मिलियनर है, लफी खुस्र, खुदाया करोड़पति है, लफी खुस्र है, उसके पता नहीं कितनी जायदाद है, कितने कंपनियां हैं, लफी खुस्र है, इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। तो ईमान शर्त है कामयाबी और नजात तक पहुंचने के लिए। ये अपनी बात रही। बहरहाल इंसान जो कोशिश करता है, हम एक जुमला कहते हैं, उसकी शरह वक्त मिले तो बताएंगे, कि जिंदगी चालाकियों से नहीं, खुलूस से जिंदगी गुजारने की जरूरत है। कोशिश ये की जाती है कि इंसान चालाकी को अपनाए। मिसाल के तौर पे इंसान जब मस्जिद में जाता है तो अपनी टोपी और तस्बीह और अंदाज़े चलन वो ये साबित करता है कि मेरे से बढ़ के मोमिन कोई नहीं है, लेकिन वही इंसान हो सकता है कि अपने घर में सबसे बड़ा शैतान। तो ये चालाकी होती है कि इंसान दुनिया को कोशिश करे कि किस लिए तुम ये दिखावा कर रहे हो, ताकि चार लोगों में मेरी इज्जत हो, चार लोगों में मेरी हैसियत हो, चार लोगों में मेरा एक एहतराम हो, इसीलिए दिखावे की कोशिश कर रहा है। और अकेले में क्योंकि कोई नहीं देख रहा है तो वो अपने शैतानियत पे आ जाता है और अपने शैतानी काम करता है। तो ये चालाकी है। और हम ये मानते हैं कि जिंदगी चालाकियों से नहीं, खुलूस से गुजारो, क्योंकि चालाकियां दफन हो जाएंगी, खुलूस हमेशा जिंदा रह जाएगा। तारीख में देख लें कि अपने दौर में माविया मनून अपने आप को सबसे चालाक इंसान मानता था, सबसे ज्यादा चालाक अपने दौर में अगर मानता था। लोग जाके मौला से भी कहते थे कि मौला, आज के दौर में सबसे चालाक अगर कोई है तो मनून माविया है। तो मौला ने तब बताया था कि अगर झूठ बोलना चालाकी है, झूठ बोलने यानी अगर झूठ बोलना शुरू कर दे तो इसको चालाकी नहीं कहते, चालाकी किसी और चीज का नाम है, मौला ने बताया। तो अजीजान गिरामी, चालाकियां दफन हो जाती हैं, खुलूस रह जाता है। माविया अपने दौर में इतना चालाक रह के तमाम चालाकियों के साथ ऐसे दफन हुआ कि उसका तस्करा करने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन अली की एक जरबत जो खुलूस से उठी थी, तमाम सकलैन पे वारी रह गई। तो ये खुद बताती है कि खुलूस बाकी रहता है, चालाकियां बाकी नहीं रहती। तो तारीख इस्लाम हमें यही सिखाता है कि इसीलिए अजीजान गिरामी, जिस आयत अच्छा यहाँ पे एक और बात अर्ज करते चलो, मसाइल एक सवाल किया गया था इमामों के दौर से, क्या वजह है कि शियों में आप अगर देखो तो कुछ सल्बी सिफात मिलेंगे, यहाँ हसद मिलेगा, यहाँ गुरूर मिलेगा, यहाँ गीबतें मिलेंगी, यहाँ चुगलखोरियाँ मिलेंगी, और दूसरे लोग, अच्छा आज की मिसाल भी ले लें, क्या वजह है, पाक आप यूरोप कंट्री चले जाओ, पाक साफ मुनज़्ज़म तरतीब, झूठ नहीं है, बहुत कम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, सच्चाई, वादा वफाई, वक्त की पाबंदी, ये तमाम चीजें वहाँ मिलती हैं। और क्या वजह है अपनी सोसाइटी में ये तमाम चीजें नहीं मिलती। तो इमामों से जब पूछा गया तो अहले बैत की जो हदीसों में इसका जवाब मिला वो यही कि मेरे भाई ख्याल रहे, अलर्ट सबसे ज्यादा शियों को होके चलना है, क्योंकि शैतान को जो काम है वो किसी और से है ही नहीं है, वो तो बस शियों से ही, अली और अली वालों के यानी अली वालों के पीछे ही उसका असल काम है, अली वाले ही उसके मकसद है, गैर अली वाले उसको टेंशन ही नहीं है। जब पता है कि वो चाहे नमाज पढ़ रहे हो, चाहे रोजा रख रहे हो, चाहे कोई भी काम अंजाम दे रहे हो बगैर विलायत अली के, यानी आपने पूरा एप्लीकेशन भर दिया, सील लगा नहीं है, तो फिर वो एप्लीकेशन की कोई वैल्यू है ही नहीं है। भाई पहले ठप्पा बताओ किस जगह से आया हो, मैंने किस जगह की सील तुम्हारे पास लगी हुई है,
तो विलायत अली की सिग्नेचर और या उसके सील के बगैर तुम्हारी नमाजों का फायदा नहीं है, रोजों का फायदा नहीं है। उसूल है ये, रुकनुद्दीन जो जुड़ी होनी चाहिए। तो शैतान ने कहा जिसकी कुछ कबूल होने की नहीं है, मैं क्यों उसको जाके बहकाऊं। जिसको मसला, शैतान ने जो वादा किया वो जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाने का वादा किया। इन लोगों को पहुंचाने की जरूरत है ही नहीं है। वो जब कबूल ही नहीं हुआ तो फिर इनके पीछे जाने के कोई रीजन ही नहीं है। जाने वाले, उसने वादा परवरदिगार से किया, लाक़ुदन्ना अला सिरातिकल मुस्तकीम, मैं सीधे रास्ते पे बैठा रहूंगा, टेढ़ों से मुझे कोई काम नहीं है। चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, इनका तो पता है रास्ता जब टेढ़ा है, ये कहीं और जाता है, मुझे इनसे मतलब ही नहीं है। मतलब उन लोगों से है जिनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है, जिनका रास्ता सैयद शबाब अहले जन्नत तक पहुंचता है, जिनका रास्ता जन्नत के दरवाजों तक पहुंचता है। कहा यहाँ बैठूंगा मैं, यहाँ बैठ के अली वालों को बहकाऊंगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। खुसूसन किसके लिए? शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अच्छा, शियों में भी दो तरह के लोग हैं। काम देख लें, थोड़ा जूम करके देखा जाए। शियों में बाज गुनहगार लोग हैं जो दीन के पाबंद नहीं है, उनसे भी काम नहीं है। ठीक है, अली वाले हैं, लेकिन वो जब दीन की पाबंदी करता ही नहीं है तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसका भी रास्ता अपनी जगह वाज़ेह है। टेंशन अब हमें जो शैतान को है वो सही रास्ते पे चलने वाले के साथ है। कहा जो दीन का पाबंद है उसी से हमारा मतलब है। तो ये करता क्या है, तो बेनमाजी को बहकाना उसका काम नहीं हो तो पहले ही बहका हुआ, नमाजी को बहकाना उसका असली काम है। कमाल यहाँ पे है, जो मस्जिद के बाहर है उससे कोई काम नहीं है, जो मस्जिद के अंदर है। ये लोग हमेशा, हम लोग क्या करते हैं, बाज़ औक़ात अच्छे काम करके आप समझते हैं अल्लाह का शुक्र है कि हम मसलन मोमिन हैं, हम नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम महफूज हैं। लेकिन हकीकत में डेंजर यही है। डेंजर रास्ते पे जो माइंस पे चल रहे हैं ये नमाजी लोग और नेक किरदार लोग ही हकीकत में माइंस पे चल रहे हैं। ये कब पड़ जाएंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन जो बेनमाजी है, मतलब बेदीन है, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कैसे बहकाता है? जो अच्छे लोग हैं, मौलाना ये तो बहरहाल नमाजी है, बहुत अच्छा, इसको कैसे बहकाएगा बेचारा? बहकाता ऐसे है, एक सिफत आप याद रख लें, उसी से आपको मीजान मिल जाएगा कि भाई ये इसका टेक्निकल पॉइंट कहाँ पे है शैतान का। अब गया मस्जिद के अंदर, देखा अपने हुलिये को एक बार आईने में, क्या क्या नूर चेहरे पे माशाल्लाह हमारे छलक रहा है। देखो पना, चेहरे पे नूर ही नहीं, क्या है पता नहीं, कौन सी नमाज पढ़ता है क्या है। देखो हमारे लिबास का अंदाज कितना पाक साफ, अल्लाह जैसे चाहता है हम वैसे ही पहन के आए। फला को देखा कोई ढंग है नमाज कपड़े पहनने का? हाँ हाँ, तो शैतान का एक हरबा आपको मिल गया, एक चीज उसका असासी पॉइंट है, जड़ है। उसने यहीं से अपनी इब्तिदा की। कहा अना खैरुम मिन, खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, मिट्टी से पैदा हुआ। आप बस ये बिठा लें जहन में, किसी भी मैदान में मेरी मजलिस उसकी मजलिस से बेहतर है, मेरा अज़ा खाना उसके अज़ा खाने से बेहतर है, मेरी मस्जिद उसकी मस्जिद से बेहतर है, मेरा गिरिया उसके गिरिये से बेहतर है, मैं उससे बेहतर अज़ादार हूँ, मैं उससे बेहतर नमाजी हूँ। जहां भी ये ख्याल आ जाए कि मैं किसी भी मैदान में उससे बेहतर हूँ, समझ लो शैतान ने अपना काम कर दिया। खत्म है। किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, नेक किरदार में, बाप के खिदमत में, माँ बाप के किसी भी फील्ड में जहां आपके तसव्वुर में ये आ जाए कि मैं उससे बेहतर हूं, तो शैतान ने अपना काम कर दिया और आपको उसके ही साथ लेके चला गया, आपको पता भी नहीं चला। इसीलिए कुरान ने कहा, एक आयत में मिलता है कि बाज लोग ये मानते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए,
यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, वो समझते हैं हमने अरे बड़े बड़े काम हमने कर दिए और अल्लाह ने कुछ कबूल ही नहीं किया है। क्योंकि हमने करके जब समझ लिया कि हमारा काम बेहतर है तो समझो आपका काम कुछ भी नहीं है। तो अजीज़ान गिरामी, बड़ी बड़ी मेहनतें बर्बाद हो जाती हैं इसी एक तसव्वुर की वजह से। बोलना तो दूर की बात है, उसके जहन में आ जाना काफी है कि मेरा काम उससे बेहतर है, मेरा इल्म उससे बेहतर है, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं उससे ज्यादा आलिम हूँ, मैं उससे ज्यादा। तो जहाँ ये तसव्वुर आ गया है शैतान ने अपना, तो अलर्ट होके जिसको चलना है वो राह है मुस्तकीम पे रहने वाले को चलना है। एक बात ये होगी। देखिए अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक निज़ाम की तरफ में इशारा करते हुए फिर जिस आयत का तिलावत किया, अगर मौका मिला मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में इतने ज्यादा हो रहे हैं कि जिसका वाकई एक इलाज बताने की जरूरत है। और खुसूसन अंजुमनों के बहुत सारे अंजुमनों में जब हमने देखा कि फाइल्स भरे हुए हैं रिश्तों को लेकर बना बता, तो मैं आपको जो एक मीज़ान अहले बैत ने बताया, ये हमारा फर्ज है कि हम ये तमाम मीज़ानात जो अहले बैत ने सिखाए वो हम बताएं। पहली बात तो सेहत को लेके आजकल दुनिया में बहुत परेशानी है। मौला मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन मौला फरमाते हैं कि अपने पेट के 3 हिस्से करो, पेट को 3 हिस्सों में तकसीम करो। पाव हिस्सा खाना रहेगा, पाव हिस्सा पानी रहेगा, तीसरा हिस्सा खाली छोड़ देना, ये हवा के लिए जरूरी है। जब पाव हिस्सा खाना, पाव हिस्सा पानी और पाव हिस्सा सांस के लिए। अच्छा, अस्थमा की बीमारियों में बहुत सारे लोग इसलिए मुब्तला हो जाते हैं क्योंकि जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया उसको फॉलो करने में अगर हमारी कोताही रही तो ये पूरा मिशन जो है खराब हो जाता है। कैसे कि पाव हिस्सा खाना खाओ, पाव हिस्सा पानी पियो, पाव हिस्सा खाली रखो। अब जैसे ही मजलिस में गए, मतलब दावतें मिल गए, यार ये तो तबर्रुक है इमाम का, खाओ हलक तक खाओ। पानी तो पानी, यहाँ तो हवा भी जाने का कोई सुराग भी बाकी नहीं रखते। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए, जो सिस्टम बताया गया, भाई आपको बताया गया ये मशीन ऐसे ऐसे चलाना है, फला फला बटन आप दबाओगे मशीन सही रहेगी। आपने सारे बटन से एक साथ दबा दिए तो पूरी मशीन खराब हो जाएगी। तो 3 हिस्सों के जगह एक ही हिस्सा एंड तक पहुंचा दिया आपने, तो अब जाहिर सी बात है उसके नतीजे तो उल्टे होंगे ही होंगे। अब इसलिए शरीयत में मुस्तहब्बात में यह है कि महीने की पहली जुमेरात, महीने का बीच का चारशंबा और महीने का आखिरी जुमेरात, यानी 3 दिन महीने में, स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड में रोजा रखने के लिए कहा। वजह क्या है? क्योंकि रोजा जो है, अतः जो सालाना हम लोग रोजा परवरदिगार ने मांगा, ये सर्विसिंग है। ये गाड़ी आपने खरीदी तो उसको साल में एक बार सर्विस करना जरूरी है। उसके ऑयल चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उसके तमाम नेटों को जो ढीले हो चुके हैं उसे टाइट करने की जरूरत होती है। तो अल्लाह ने सर्विस के लिए रोजा रखा और इसीलिए कहा कि भाई फास्टिंग, हत्ता डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सबसे बेहतरीन इलाज फास्टिंग है। आप महीने में 3 बार रखा कि भाई सालाना सर्विस अपनी जगह है, महीने में 3 सर्विसों की भी जरूरत पड़ती है ताकि तुम्हारा जो ये बिगड़ा हुआ निजाम है अपने निजाम पे आ जाए, ये इधर उधर की चीजें मुनज्जम हो जाए। तो इंसान खाने के एतबार से देख ले और सिस्टम को फॉलो करने के एतबार से देख ले कितना ज्यादा नुकसान में। अगर मैं सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, हेलमेट लगा के नहीं जा रहा हूँ, तो बहरहाल उसका नुकसान मुझे ही भुगतना पड़ेगा। ये अपनी जगह पे मौला इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत मिलती है, 2 तरह की रिवायत मिलती है। ये अपने टाइम को 3 हिस्सों में तकसीम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। अपने टाइम को बाज रिवायतों में 4 हिस्से, बाज रिवायतों में 3 हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा खुदा के लिए, एक हिस्सा जरिए माश के लिए और एक हिस्सा अहले खाना घर वालों के लिए।
अगर ये सिस्टम जो अहलबैत ने बताया फॉलो कर लिए, यकीनन समझे कि वो जिंदगी ये खुशगवार जिंदगी गुजरेगी और वो इसी दुनिया में जन्नत को देख सकता है। कैसे? एक हिस्सा खुदा को छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह के 10 बजे तक खुदा को छोड़ दो और उसके बाद 10 बजे से मैं 3 बजे तक काम पे चले जाऊं, 3 बजे से फैमिली, नहीं। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कैसे? एक हिस्सा खुदा का मतलब यह है जिसमें तकरीबन हम लोग मुब्तला, हो सकता है उसमें मैं खुद भी जो है मुब्तला रहूं, और जिसको समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है, वो है खुदा के हिस्से का मतलब जहां सुबह की नमाज का टाइम हो गया या जोहरैन की नमाज का वक्त आ गया। देखिए, इंसान को बंदा साबित करना है और बंदगी साबित करना है, तो फिर 15 मिनट अगर जोहरैन की नमाज का टाइम है, वो नमाज अदा करता है, तो फिर वो नमाज के हालत में, जब जोहरैन का टाइम आ गया, नमाज के लिए रुका हुआ है, कभी बच्चों के साथ बातें कर रहा है, कभी मोबाइल उठाया, टिंग टिंग घंटी बज रही है उसकी, और उठा उठा के मैसेज देख रहा है, तो तुमने टोटल टाइम जो खुदा का है उसको नहीं दिया। ये असल प्रॉब्लम है कि जब टाइम आधा यानी एक हिस्सा खुदा को दे दो, यानी बंदगी के लिए दे दो, का मतलब यह है कि जब भी आप इबादत में जाएं तो दूसरी कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जियारतें हो, कोई आके मुलाकातें हो। इसीलिए बाज़ औक़ात मिलता है कि जब असहाब आते थे इमाम से मिलने के लिए, अतः गालिबन सातवें इमाम से ही ये अली इब्न अब्दीन का भी वाक़या इसमें शामिल है, तो कहा इमाम मसरूफ़ इबादत है, आप वेट करें, क्योंकि ये टाइम इबादत का टाइम है, इसमें खलल पसंद नहीं है। इमामों ने भी अपनी सीरत से साबित किया, जो टाइम खुदा का हो वो टाइम खुदा के लिए होना चाहिए, उसमें किसी और बिजनेस को घुसाना नहीं चाहिए। फोन्स, मैसेजेस, इलाकात, ये तमाम चीजों को साइड रख के प्यूरिटी के साथ इंसान अपना पूरा टाइम खुदा पे सर्च करे, तो तब जाके ये बंदगी साबित होती है, ये खुदा की बंदगी हुई। अब आते हैं काम के लिए। हमारे मुआशरे में मौलाना काम नहीं, मौलाना फला जगह जॉब किया वो नहीं, मौलाना ये है और मौलाना वो है, तो जॉब को लेके, काम को लेके परेशान रहते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक हिस्सा आपको रिस्क हलाल सर्व करने में इस्तेमाल करना है। रिस्क हलाल का मतलब ये हुआ कि जो टाइम आपका काम का है, जॉब का है, फॉर एग्जाम्पल आप 9 o'clock से 3 o'clock तक आप जॉब पे जाते हैं, तो अब यहाँ जॉब पे तरकीज होनी चाहिए। यहाँ फोकस जो है अपने काम पे करेगा। जब उस काम के आगे बढ़ाने में, उसके क्वालिटी पे आदमी काम करेगा, अपना जो काम है उसके क्वालिटी पे अगर काम करेगा, तो यकीन माने कि इंसान रोजी के मसले में कभी प्रॉब्लम में नहीं आ सकता। लेकिन गया जॉब में है, कभी दोस्तों के फोन में लगा हुआ है, कभी रिश्तेदारों के फोन में लगा हुआ है, कभी इधर गपशप चल रहा है, कभी उधर गपशप चलेगा। तो जब कोई चीज क्वालिटी के साथ अंजाम नहीं दी जाए, इसीलिए अमीर और मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बोला फरमाते हैं, कीमत कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनु, हर इंसान की कीमत उसी में है जिसमें, उसमें यानी जो चीज वो अच्छी तरह कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पे, भाई आपको चाय पीना है 10 रुपए की, लेकिन सवाल ये करेंगे यहाँ बेहतरीन चाय कहाँ मिलती है, क्योंकि इंसान हमेशा क्वालिटी को ढूंढता है। 10 रुपए की चाय के लिए भी आप ढूंढ के क्वालिटी के पास जा रहे हैं, तो बड़े बड़े काम में बगैर क्वालिटी के कैसे हो सकता है? और क्वालिटी कब पैदा हो सकती है? जब फोकस आपका काम पे रहे। तो ये अहले बैत ने बताया कि काम में अगर तरक्की चाहते हो तो आपको चाहिए कि फोकस आपका, जो टाइमिंग रिस्क हलाल कमाने का है, वो टाइमिंग आप पूरा फोकस जो है काम पे सर्व करेंगे, तब जाके काम के मैदान में आप कामयाब रहेंगे। ये दूसरा रास्ता हो गया। तीसरा रिश्ता हुआ फैमिली का। यानी इमाम ने जो कहा, तीसरा हिस्सा जो आप तकसीम करेंगे फैमिली का है। कितने फैमिलीज ऐसे हैं जिनको अगर बिठा के पूछे तो ये शायद बताएंगे कि कभी, या बहुत सारे बच्चों के बिगड़ने की एक वजह ये होती है कि भाई माँ बाप ने टाइम नहीं दिया, टाइम ही नहीं मिला। बच्चा बात करना चाहता है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है। या मसलन बीवी अपने शोहर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, भाई शोहर के पास टाइम ही नहीं है।
वो घर पे आके भी लैपटॉप लेके अपने काम में इतने मसरूफ रहते हैं कि ना बीवी के लिए उनके पास टाइम है, ना बच्चों के लिए उनके पास टाइम है, ना फैमिली जो टाइम होता है उसमें स्पेंड होना चाहिए। कितने सारे ऐसे जो बुजुर्ग औरतें हैं जो ये कहती हैं, खाता हमारे फैमिली में कभी पूछता हूँ तो कहते हैं कहाँ भाई, हमें कहाँ ये नसीब हुआ कि कभी शोहर बैठ के 10 मिनट मुस्कुरा के हमसे बात कर लिया। भाई कमा किसके लिए रह रहे हो? अगर अपनी फैमिली ही के लिए कमा रहे हो, उनकी खुशी के बगैर तुम्हें कमा के फायदा क्या? अगर तुम्हारी फैमिली ही तुमसे खुश नहीं है तो फिर ये कमा के लाखों करोड़ों को रख के करेगा क्या? तो अहले बैत ने जो बात बताई, जो फैमिली टाइम होगा उसको फिर फैमिली टाइम में जो आदमी स्पेंड करेगा और पूरा फोकस उस फैमिली टाइम पे सर्व करेगा, वो रिश्तों में कभी दरार नहीं आ सकता, वो रिश्तों में कभी परेशानी नहीं आ सकती है। क्योंकि अगर फैमिली टाइम आ जाए, अब दोस्तों का फोन भी आया तो 2 मिनट में बात करो रखो, काम खाने के लिए बैठे हैं, कम से कम खाते वक्त इंसान अपने फैमिली के साथ टाइम खाने के लिए बैठे हैं, जॉब और फोन और दोस्त और काम और इसी में जो है स्पेंड हो रहा है, जिससे इंसान कतरा जाता है, इंसान बेजार हो जाता है। लिहाजा जो ये स्टेप्स को समझें और अगर इसको वाकईन सही तरीके से हम अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, ये जो फॉलो बताया इमाम ने, यकीन मारे न वो अल्लाह की नजर में बंदगी में कोई कसूरवार ठहराया सकता है, ना काम में कभी नाकाम हो सकता है, ना रिश्तों में कभी नाकाम हो सकता है, वो कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाने ग्रामी, असल चीज ये है कि इंसान तरकीज दे, फोकस रखे, पढ़ाई के लिए है। अब मसलन जब अगर नौजवान बच्चे भी हैं, कुरान अजीब मौजज़ा है और उससे एक एक लफ्ज में अपने समंदर को अता कर दिया। और इन लोगों को समझ, मौलाना डिग्री किया जॉब की तलाश में है, वो किया जॉब की तलाश में है, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां हासिल कर ली है, लेकिन जॉब के लिए परेशान हमारी कौम में नजर आते हैं। कुरान ने एक छोटे लफ्ज में इक़रा, देखें अरबी में जो अरब माहौल में रहे हैं, हमारे रजा भाई वगैरह सब जो रहे हैं अरब में, अच्छी तरह से ये बात मेरी हजम कर सकते हैं। अगर कोई अरबी के पास आप जाके कहें कि मैं अपने बच्ची की शादी रख लिया हूँ और इंशाल्लाह दुआ, तो वो कहते हैं हर हर जुमले में तकरीबन अरब को ये कहते मिलेगा, अल्लाह करीम। ठीक है, अल्लाह करीम है, जाओ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कोई बीमार हो गया, मैंने किसी अरब दोस्त से कहा कि यार ऐसा है, अल्लाह करीम, आप टेंशन मत लो, अल्लाह करीम। तो आपको तकरीबन अल्लाह करीम का लफ्ज जो है अरब में एक आम मिलेगा कि वो इस्तेमाल कर। अल्लाह करीम का मतलब अल्लाह लुटाने वाला, ठीक है, बेहिसाब देने वाले को करीम कहते हैं। लेकिन कुरान ने बड़ा अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया, इक़रा व रब्बुकल अकरम। करीम लुटाने वाले को कहते हैं, अकरम बहुत ज्यादा लुटाने वाले को कहते हैं। कुरान ने छोटे लफ्ज में बना के ये एक बेहतरीन पैगाम दे दिया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, तू पढ़, तेरा परवरदिगार अकरम है। ये नहीं कहा तू पढ़ के टेंशन ले, तू अपने पढ़ाई में फोकस दे और क्वालिटी पैदा कर ले अपने अंदर। इक़रा, पढ़ ले। मुसीबत हमारे कम्युनिटी की यही है कि पढ़ते नहीं है। अल्लाह ने कहा पढ़, बाद में मेरे ऊपर छोड़ दे। रब्बुकल अकरम, तुझे तलाश करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तुझे तलाश करती हुए आएंगे, तुम्हें तलाश। इक़रा व रब्बुकल अकरम, तुम जो भी पढ़ रहे हो उसमें क्वालिटी पैदा करो, यकीन मानो अल्लाह के इस वादे पर। फिर वो हमने इसको बहुत करीब से महसूस किया कि इंसान लिल्लाह उसमें पढ़ाई कर ले तो फिर काम ढूंढते हुए उस तक पहुंचता है, उसे काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। रब्बुकल अकरम, अल्लाह बहुत ज्यादा लुटाने वाला है, तू पढ़ ले, अल्लाह बहुत लुटाएगा, ये उसका माना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत ने कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें इंसान परेशान हो। आपने महसूस किया इस बात से कि अगर कितने प्रॉब्लम्स जो है माशरे की खत्म हो सकती है, जो निज़ाम, चाहे सेहत को लेकर हो जो कि परेशानियां हैं, चाहे रिश्तों को लेके है परेशानियां जो है उसको हम हल किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको उसमें अहले बैत के तालीमात में कोई गोचा छोड़ा नहीं है। वजह इस्लाम के पीछे हाथ धो के पड़े होने की वजह यही है
कि ये प्रैक्टिकल मजहब है, थियोरी वाली मजहब नहीं है। ये वो मजहब है कि हर संडे जाके घंटी हिलाने वाला मजहब नहीं है। ये आंख खोलने से लेके आंख बंद करने तक मुसलसल प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस में रखने वाला मजहब है। लिहाजा देखें, यहाँ से मैं अपनी बात को जोड़ते हुए जो पिछली गुफ्तगू हुई थी उसकी तरफ, हालांकि जो आयत में पढ़ा रह गया, मैं इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में उसे जरूर छेड़ के आगे बात बढ़ाऊंगा। हमने बात यहाँ तक रोकी थी पिछली अपनी कि इस्लाम टारगेटेड है। वजह क्या है? देखिए, जब मैं अपने को हाई क्लास समझूं तो मैं चाहूंगा नीट रहूं, बातमीज रहूं और बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइफ मेरी रहे, लेकिन मेरे नीचे जितने लोग हैं उनको डर्टी रहना चाहिए, उनको पैसा नहीं होना चाहिए, ये बर्बाद शुदा कौम होना चाहिए। आबाद शुदा तो हम लोग रहेंगे। तो अगर इन लोगों का जो प्लान है, मसलन लोगों को मस्त कर दो, भले हम होश में रहें, शराब खाने खोलो, कैसीनोज खोलो और ड्रग्स का ये वो जो जिसके वजह से हाई लेवल की कमाई आपकी हो सकती है। तो दुनिया में यही तो सब कुछ चल रहा है कि भाई नशे की व्यापार है और ये तमाम, ये तेजी से बहुत जल्दी कमाने का रास्ता है। अब इसके लिए अगर कोई कांटा है जो चुभता है, अगर कोई रुकावट है कि जिसकी वजह से हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ही है, वो इस्लाम। दूसरा कोई मजहब उनके लिए प्रॉब्लम का सबब नहीं है। भाई वो शराब खाने खोलना चाहें, अगर मिसाल के तौर पे सऊदी में, ईरान में या कहीं भी इस्लामिक कंट्री में जाके शराब खाने खोलना चाहेंगे, उनको थोड़ी परमिशन मिलेगी। कैसीनो खोलना चाहेंगे, उनको थोड़ी परमिशन मिलेगी। तो जो रुकावटें हैं वो दीन है। ये तो रसूल इस्लाम की दुश्मनी रखते हुए वैसे भी इस्लाम को खत्म करना चाहे, तो दीनदार नहीं होना यही उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत का बाइस है और यही कमाई का सबब बन सकती है। तो इसके लिए इन्होंने एक गेम जो खेला, मीडिया का सही इस्तेमाल है। मैं शॉर्ट करते हुए जल्दी जल्दी ये बच्चों को बता रहा हूँ मीडिया का इस्तेमाल है कैसे। एक बात और याद रखें, जिसको इस्तेमाल इन लोगों ने किया, खुसूसन जवान इस बात को समझें, एक टेक्निकल पॉइंट है, वो है आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वाला जो तरीका है, इन्होंने सबसे बेहतरीन इस्तेमाल उसका इन लोगों ने किया कि मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया इस्लाम को बर्बाद कर। तो मैं आपको सिस्टम के एतबार से बता दूं, मर्द की शहवत आंखों में होती है, औरत की शहवत आंखों में नहीं होती। औरत की शहवत एक अलग रास्ता है, इन्हें फिजिकल दुनिया में होती है, लेकिन मर्द की जो शहवत होती है आंखों में होती है। ये हमसे ज्यादा इंसान को अच्छी तरह से रीड किए हैं, स्टडी किए हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं मॉल्स में लेडीज मिलेंगे, जॉब्स में सबसे ज्यादा लेडीज को कबूल किया गया, रील्स में सबसे ज्यादा आपको लेडीज नजर आएंगी। आप बस जिधर जिधर नजर उठाया बस औरतें ही औरतें मिलेंगी। वजह क्या है? वजह इनका ये जानते हैं कि मर्द की शहवत आंखों में होती है, इसको बस दिखा दो, ये बहक गया तो दुनिया अब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारे जवानों को इतना इन्होंने रील्स में मसरूफ कर दिया कि यूट्यूब के या इंस्टाग्राम में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो रील्स है। वजह क्या है? वजह टारगेट है जवान। जवान बहक गए और मर्द अगर खत्म हो गए तो फिर माशरा तबाही की तरफ चले जाता है। तो एक तो ये कि इस चीज में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नौजवानों से ये कि आप बार बार क्या देख रहे हो इसका ख्याल रखना जरूरी है। वो इसलिए कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का इन्होंने इतना देखे, एक मकूला है जो दिखता है, एक सलवार पढ़ देंगे, मैं आखिरी बात करके अपनी बात तमाम करूंगा। ये मकूला मशहूर है, जो दिखता है वो बिकता है कि नहीं? आपको जितना दिखाओ, अच्छा जब आप मिसाल के तौर पे चाय के आदी, आपको पता है कब पता चलेगा आप कितना चाय में घुसे हुए थे? जब आप चाय छोड़ना चाहोगे, जिस दिन आपने इरादा किया कि आज से मुझे चाय नहीं पीना, तब समझ में आएगा कि चाय कहाँ तक घुसी हुई थी हमारे साथ, तब समझ में आएगा।
आज जब ये हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इजरायली प्रोडक्ट से अवॉइड किया जाए, तो तब हमें समझ में आया कि भाई ये लोग कहाँ तक घुसे हुए हैं। हमारे हमाम छूटे नहीं, हमारा घर छूटा नहीं, हमारे कोई मैदान छूटा नहीं, हमारे ड्रिंक्स छूटे नहीं है। आप ड्रिंक्स पीने जाओ, सारे प्रोडक्ट्स जो है उन्हीं के मिलेंगे। क्यों इनके मिलते हैं? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए इन्होंने जो कॉन्शियस माइंड है उसको इन्होंने एक बार दिखाया, दो बार दिखाया, तीन बार दिखाया, 10 बार अगर किसी चीज को दिखा दिया तो अब ये जो देखा है आपने, ये कॉन्शियस में नहीं रहा, ये सब कॉन्शियस में चले गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी मॉल में जाके जूस खरीदना चाहोगे, वही खरीदोगे जो 10 बार आपको दिखाया गया। इसका पूरा पूरा इस्तेमाल इन्होंने किया कि भाई उसी तरह से इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एरियल ले लें, जूस में ले लें, एक लंबी फहरिस्त है, चॉकलेट्स में ले लें, एक लंबी फहरिस्त है, साबुन में ले लें, एक लंबी फहरिस्त है। आप कितने प्रोडक्ट्स में जाओगे, किस किस चीजों से बचोगे? और जो दिखता है वो बिकता है का इन्होंने इस्तेमाल कहाँ किया? यूट्यूब का इस्तेमाल किया, फेसबुक का इस्तेमाल किया, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया। ये दुनिया जो क्योंकि इनके हाथ में है, तो इन्होंने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो लिहाजा हमारे नौजवान से सबसे ज्यादा क्या चीज आप बार बार कर रहे हो, या क्या चीज आप बार बार देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा नोटिस करना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी चीज को 2, 4, 5, 10 बार आपने कर दिया, तो फिर ये सब कॉन्शियस में चले जाता है, आप ऑटोमेटिकली केयर में चले जाते हो। फिर आप मैनुअल लाइफ में नहीं रहती कि आपके इख्तियार में है, आप ऑटोमेटिकली उस दुनिया में चले जाओगे। तो लिहाजा हमें एक बार अजा खाना जाना, एक बार, 2 बार, 10 बार, बजाय इसके कि हम 10 बार किसी गैर दीनी जलसात में बैठे। देखें अभी एक बात आ गई तो अर्ज करते चलो, ज़य्यनु मजालिसुकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपने मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। वजह क्या? अगर जो जब भी पूछा जाए कि भाई मौलाना ये हदीस पे आपने अमल नहीं किया, अच्छा तो ये हदीस मौलवियों के लिए है कि जब भी मजलिस में बैठो अली का जिक्र करो, जबकि ज़य्यनु यहाँ खिताब सबसे है। और मजालिस का मतलब सिर्फ इस मजलिस को नहीं, जो भी बैठक हो आपका, अगर आप फेसबुक में कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर रहे हैं, बैठक है, आप व्हाट्सएप में कोई कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर रहे हैं, 4 लोग मिल के बात भी कर रहे हैं, तो ये भी एक बैठक है। आप दोस्तों में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, 4 लोग जहां बैठ के गुफ्तगू चली, कहा किसी और का जिक्र नहीं, अली का जिक्र लेके आओ, क्योंकि उस जिक्र में फिर बरकत मिलेगी। और ये इस वजह से भी कहा अद्दिबू औलादकुम बिहुब्ब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने औलाद को मोहब्बत अली से बाअदब बना दो। यानी जो मोहब्बत अली रखता है वो बाअदब होता है, बेअदब कभी नहीं हो सकता। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले ग्रामी। इस वजह से कि दुश्मन किस तरह से इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके और मिजाज इंसानियत का ख्याल रखते हुए कि मर्द कैसे बहक सकता है, औरतें कैसे बहक सकती हैं, ये तमाम चीज़ों को अच्छी बारीकी के साथ स्टडी करके इन लोगों ने उसको बाकायदा अप्लाई किया है। और जिसकी वजह से दुनिया में बहके हुए हालात जो आपको नज़र आते हैं, ये मैंने एक बात बताई थी हमारे बरादर से कि ये दुनिया अभी जो हालात आ रहे हैं, मैंने 2-4 साल पहले ये बात बताई थी कि ये स्ट्रेस की दुनिया है। ये बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे शिया मजहब वाली के मानने वाले ऐसे मिले कि जो अपने स्ट्रेस की वजह से सुसाइड तक पहुंच चुके हैं। केसेस को हमने कुछ देखा और सुना, इसके रीजंस क्या हैं और किस तरह से ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे इंसान को स्ट्रेस की दुनिया में जानबूझ के डाला जा रहा है। और करबला और दीन का पैगाम, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, फज़्कुरुल्लाह कसीरन
लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो कि शायद तुम फलाह पा जाओ। कसरत के साथ जिक्र करने का मतलब यहाँ यही है कि कसरत के साथ फील करो। जिक्र का मतलब ये नहीं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ लिया। जिक्र का मतलब ये है कि ज्यादातर अपने जिंदगी में खुदा को महसूस करो। अच्छा, ये बात बस आखिरी तमाम करके अपनी बात एंड पे लाऊं। इंसान दो चीजों से मिल के बना है, एक मिट्टी है, एक नूरानी दुनिया आलम मलकूत और आलम मुल्क से मिल के बना है। आलम मुल्क मादी दुनिया है, इसके लिए जिस्म है, जिस्म के लिए क्योंकि मिट्टी से बना है इसीलिए मिट्टी की चीज इसको सूटेबल होती है। जिस्म की ताकत मिट्टी से बनी हुई चीजों से जिस्म को ताकत मिलती है। दूसरा पार्ट इंसान का रूह है। रूह कहाँ से आई? परवरदिगार से, वहां से आई है। देखिए, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को आप इलेक्ट्रिक से ही चार्ज कर सकते हैं। मिट्टी के चीज को मिट्टी से चार्ज करो, नूर की चीज को नूर से ही चार्ज कर सकता है। जब तक ये चार्जर जो मिट्टी से मिला है बॉडी को पावर मिलेगा, जब तक ये चार्जर खुदा से जुड़ेगा नहीं तो उस वक्त तक रूह में वो ताकतें पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये चार्ज उसी दुनिया से होती है। ये अलग एक बहस है कि भाई जसद, कुरान में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए। जसद है, जिस्म है, बदन है, रूह है, नफ्स है। ये इनको खोल के मैं बस 2 मिनट में इसके शरह करके आखिर में, जसद रूह फूंकने से पहले वाले ढांचे को जसद कहते हैं। जब उसमें रूह फूंक दी जाए तो जिस्म हो जाता है, जब रूह निकाल ली जाए तो बदन हो जाता है। तो ये तीनों अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए। एक नफ्स है, एक रूह है। नफ्स वो होता है कि ये आलम मलकूत से आई हुई मखलूक का नाम नफ्स है। अब सारा मामला आता है रूह में कि यसअलूनका अनिर रूह, ए रसूल तुम्हें रूह के बारे में पूछेंगे, कह देना कुल रूह मिन अम्र रब्बी, अम्र परवरदिगार के जानिब से। इसका पूरा जौहर तारीफ तो हम बयान नहीं कर सकते रूह की, लेकिन इतना कहूंगा, रूह एक पावर को कहते हैं। भाई आपने पूरा जिस्म बना दिया, पूरा ढांचा बना दिया। जिस गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से। वो फलां गाड़ी डीजल से चलती है, और ये टीवी किससे चलता है? इलेक्ट्रिक से। तो उस तरह से कायनात की अल्लाहु नूर समावात वल अर्द, खुदा जमीन और आसमान का नूर है। नूर पावर को कहते हैं। अगर पत्ता भी हिल रहा है तो समझो कि वहां जाते इलाही अपना नूर, अपनी ताकत पहुंच रही है। इसीलिए मौला का वो जुमला भी मिलता है, मा रअयतु शैअन इल्ला व रअयतुल्लाह क़ब्लहु व फीहि व बअदा। मैंने कोई चीज नहीं देखी मगर ये कि उससे पहले भी खुदा नजर आया, उसमें भी खुदा नजर आया, उसके बाद भी खुदा नजर आया। तो कायनात बगैर मुहर्रिक के हरकत पे नहीं आ सकती। तो अगर कोई भी कायनात का जर्रा भी हरकत कर रहा है तो समझो कि इज़्न इलाही के जरिए से कायनात। तो रूह वो पावर है, वो एक इलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं कि वो ताकत है, वो बिजली है कि जिसके जरिए से नफ्स और बदन दोनों जिंदा रहते हैं। क्योंकि नफ्स जुदा होता है। कुरान की आयत कहती है कि नफ्स जो है रात में जब इंसान सो जाता है तो नफ्स निकल जाता है। इसीलिए कहा कि वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जिसकी मौत आई नहीं है नींद में, उसके नफ्स को रिटर्न कर देता है खुदा। जब इंसान सोता है नफ्स निकल जाता है, जिसको मौत आ गई सो गया। एक लंबी नींद का नाम मौत है। और जिसको अभी मौत आई नहीं उसका नफ्स रिटर्न आ जाता है। अगर रूह निकल जाता तो नफ्स, ये बदन जो है मर जाता अगर पावर उससे खत्म हो जाए। लेकिन पावर है, नफ्स जुदा हो सकता है लेकिन फिर भी पावर रहता है। नफ्स और बदन को चलाने वाले एक पावर को जो है रूह कहते हैं। तो ये एक तफसीली बहस है। और जाने ग्रामी अहले बैत के बहुत सारे तालीमात, इन तमाम चीज़ों को अगर आप समझें, खुदा से बार बार जुड़ने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि जो तुम्हारी ताकत है, जो तुम चार्ज होगे, वो उसी नूर से अपना कनेक्शन जोड़ के चार्ज हो सकते हैं, जैसे जिस्म मिट्टी से जुड़ के चार्ज होता है। तो अजीजान गिरामी, लेकिन
अफसोस ये रहा, हम जिन महीने में गुजर रहे हैं, इस्लाम के ये तमाम तालीमात रहे जिससे बनी उमैया और बनी अब्बास जैसों को बहुत हसद था अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम से। इंसान इल्म से हसद करता है, जिसकी वजह से अन्नास अअदाउ बिमा जहिलू, लोग जिस चीज को जानते नहीं हैं उसके दुश्मन होते हैं। तो क्योंकि अहले बैत को पहचाना नहीं, मारिफत अहले बैत इन्होंने हासिल नहीं की, तो उनके दुश्मन बन बैठे। और उन महीनों में ये मुहर्रमुल हराम है, यानी अरब की जाहिरों में यही, इसीलिए रिवायत में भी गालिबन छठे या इमाम रजा आठवें इमाम से ये हदीस मिलती है कि जिन महीनों में जाहिलियत के ज़माने में भी जंग करना हराम मानते थे लोग, उन महीनों में हुर्मत रसूल इस्लाम को पामाल किया। यानी ये वो महीने जैसे ज़िक़ाद है, ज़िलहिज है, मुहर्रम है और रजब है, ये 4 महीनों में जंग हराम है। ये चार, इसीलिए मुहर्रमुल हराम इसको कहा गया क्योंकि इसमें जंग हराम है। और इसीलिए इमाम ने कोई इकदाम नहीं किया था, पहला तीर उम्र साद ने चलाया था। जंग करना, इब्तिदा करना हराम है, लेकिन डिफेंस वाजिब हो जाता है अगर कोई आप पे हमला करे। तो जिन महीनों में, इमाम यही कहते हैं, जिन महीनों में दूसरों का खून बहाना जो है यानी जंग करना हराम समझते थे, उन्हीं महीनों में हुर्मत रसूल को ऐसे पामाल किया। एक तो ये जुमला मिलता, दूसरा वो फुरात का पानी जो हत्ता जानवरों को भी जिसकी पाबंदी नहीं थी, यानी जानवरों को मना नहीं था कि फरात में पानी ना पिए, यानी जानवर फरात का पानी पी सकता है, लेकिन रसूल जादिया और आले रसूल पाने के लिए तरसता रहे। एक ऐसा जुल्म मुसलमानों ने अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम पे किया। आज़ादारा ने सैयदुल शुहदा, एक मंजर कल हमने बयान किया कि किस तरह से शहजादी बाजार शाम से गुजरते हुए जब ये मरहला तय करके आगे बढ़े हैं, तो दरबार में घुसने के बाद जो कैफियत बताई जाती है कि हमें दरबार में ऐसे ले जाया गया जैसे हबश के गुलामों को बांध के ले जाया जाता है। एक ही रस्म है और सबके गले उसी में बंधे हैं, और सकीना अपने पंजों पे चल रही है कि कोई ऊंचा है कोई छोटा है, एक ही रस्म में सबको। शहजादी ने अपील किया, जैसे ही दरबार यजीद में गए हैं, अभी बात का मौका नहीं आया था, एक मर्तबा सब एक तरफ खड़े रहे और सैयद सज्जाद एक तरफ खड़े रहे। मौला के हवाले से भी गुफ्तगू है, वक्त मिले तो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल वो यही करता है कि इनमें अली की बेटी ज़ैनब कौन है। यजीद यहाँ पे सैयद सज्जाद की नहीं मालूम क्या हालत रही होगी, मौला ही बेहतर जाने। इसलिए शायद वो दर्द के मंजर को याद करके हमेशा सैयद सज्जाद रोया करते थे। कहा तुम में ज़ैनब कौन है। शराबी के जबान में जब ज़ैनब का नाम आया है, तड़प गया सज्जाद तेरी मजाल। इसीलिए फिजा आगे आ गई, आगे आ गई, कहने लगी तेरी मजाल की, तू तेरी गंदी जबान से ज़ैनब का नाम ले। कहा तू कौन है। कहा मैं उनकी कनीज फिजा हूँ। कहा पहले इसको बांध दो और इसको कत्ल कर दो। जैसे ही हुक्म दिया उसको हटाने और जनाब फिजा पे जुल्म करने के जैसे ही ऑर्डर आया, तो जनाब फिजा ने एक मर्तबा खड़े हुए गुलामों से खिताब करके कहा, ए गुलामों तुम्हारे शहजादी पे हमला होगा और तुम लोग देखे तमाशा कर रहे हो। गुलामों ने तलवार निकाली, हम अपनी जान दे देंगे, शहजादी पे हाथ आवाज हर पाने नहीं देंगे। बस ये मंजर ज़ैनब ने देख रही थी। एक मर्तबा मदीने का रुख किया, नाना अरे हबश के गुलामों में इतनी गैरत कि वो अपनी शहजादी को बचाने के लिए निकल गए, लेकिन ज़ैनब का बचाने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से यजीद से खिताब करके शहजादी ने बड़ा अजीब सवाल कर लिया। कहा, शहजादी ने कहा, पहले तो यजीद क्या ये जेब देता है कि हमें हबश के गुलामों की तरह दरबार में लाया जाए। और फिर दूसरा सवाल शहजादी ने कहा, ए यजीद क्या तूने ये इंसाफ किया कि तेरे कनीज भी पर्दे में है और रसूल जादिया बेमकना और चादर
ऐसे दरबार में लाया गया कि जो दूर खड़ा था वो भी घूर रहा था, जो नजदीक खड़ा था वो भी घूर रहा था, जो शरीफ था वो भी देख रहा था, जो जो जलील था वो भी देख रहा था। अजीब व गरीब मंजर गुजरे हैं आज़ादारा ने मजलूम करबला। अरे ज़ैनब जैसी हस्ती जिसे सूरज ने भी ना देखा हो, उसे जलील और शरीफ लोग मिलके देख रहे थे शाम के बाजार में। इसी को याद करके कहा, ए यजीद तूने इंसाफ नहीं किया हमारे साथ कि तेरी कनीज़ें भी बाहिजाब रही और हम बेपर्दा बेमखना वो चादर दरबारों में घुमाते रहे। यहाँ तक कि यजीद ने एक बच्ची को देखा जिसके गाल सियाह हो चुके हैं, जो छोटी सी बच्ची है। आप एक बार मारो सुर्ख होता है, दो बार तीन बार मारो नीला पड़ता है, जब किसी बच्ची को बार बार मारो तो ये सियाही में तब्दील हो जाता है। यजीद पूछने लगा, ये कौन बच्ची है जिसके गाल सियाह है? कहा, ये हुसैन की बेटी सकीना है। अच्छा, यही वो बच्ची है जो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, या हुसैन जिससे बहुत मोहब्बत करते थे? सकीना चल, मैं आज तेरा इम्तिहान लेता हूँ। अगर वाकई तेरा बाप तुझसे मोहब्बत करता था तो बुला, अपने बाप को मैं देखना चाहता हूँ। तश्त में इमाम हुसैन का सर रखा है, जले हुए दामन को सकीना ने फैलाया। मैं याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे बाबा को मुझसे मिला दे, अभी दुआ खत्म नहीं हुई। तश्त से सर उठा, सकीना के गोद में आया, बाबा को जैसे ही देखा सकीना ने गाल को गाल से लगाया। इस गाल पे बड़े तमाचे लगे हैं, आपके जाने के बाद बड़ा जुल्म किया जालिमों ने हम पर। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। जो आम जाम विषय ने हिफाजत करना, हमारे इस मकसद से अमल को कबूल करना, साहिब खाना और हाज़रीन के घरों में बरकत नाज़िल करना, साहिब मजलिस के तमाम और हाज़रीन के तमाम मज़लूमीन की मग़फ़िरत करना, खुदाया कारोबार में रिज़्क़ में बरकत अता करना, सेहत में आफियत अता करना, खुदाया तो जो आसान नंबर मतलब इल्म हासिल करने खुदाया उनके तरक्की अता करना, खुदाया ज़माना की ज़रूरत में राज़ी करना, हमें इस्लाह बना करने की आवाज़। एक रोज तड़प ये पूछा, सजाद तू कब तक रोएगा? उस वक्त मेरे मौला ने कहा, उस वक्त मेरे मौला ने कहा, अपने मुकद्दर पर सुगरा के सवालों पर क्यों ना रोए सजा, क्यों ना रोए सजा। आप ऐसे बिजुते के बाप कसे, वो सात सफर में वो जिसने चीरा था का जिक्र, वो की सजा मिलती हो जहाँ, बच्चों को बस बहानी फिर ना कोई संसार, क्यों ना कोई मैं क्यों कहती हूँ रोया न कहो ऐ साल मेरे भाई को
आकर बैठी हूँ, मासूम बहन को जिंदा में, जो छोड़ के तन्हा आया, क्यों ना कोई सच्चा, क्यों ना कोई सच्चा। आभास का सच मैं देख चुका हूँ वो मंजर, दरबार में मैं क्यों कर न गया, जब नाम तुम्हारा लेकर, कहता था यही जैनब है कहा, ले आओ यहाँ पर ले जाकर, क्यों ना कोई सच्चा, क्यों ना कोई सच्चा, सामने शुक्रा के जाऊं, बेहतर तो यही है मर जाऊं, तुम जिंदा हो अकबर न रहा हो, पूछे तो क्या बतलाऊं, क्या सब्र करूं, क्या सब्र करूं, है जख्म बहुत दिल के अंदर, क्यों ना कोई सच्चा, क्यों ना कोई सच्चा, क्यों ना कोई सच्चा। बाबा का रखा और तख्त पे कातिल बैठा था, दरबाने मुबारक पर उनके, खुश हो के चढ़ी वो मारता था, अफसोस मैं कुछ भी कर न सका, अब तक है उसी से दर्द जिक्र, क्यों ना कोई सच्चा, क्यों ना कोई सच्चा। जब हुए बाज अब्बास करम दरिया बने, का हुआ हजरत कारम दरिया, वो बहरे करम दरिया, सरकारे हरम दरिया, मस्तो खुदा तुम्हें अगले रुपए, जिस तरह छिकारा अब्बास पे आए मौला, ये रो रो के हर भाई को आज हम कह दो खुदारा भैया, भाई को अब्बास ने भाई बोला, आखिरी सांस ली और डाले मन को, अरे भाई भाई आगोश में दम तोड़ दिया, अरे भाई भाई आगोश में दम तोड़ दिया, अब्बास सारे अब्बास, अब्बास सारे
जुदा हो गया पास सहाई अजदार से जुदा हो गया पास सहाई हर देश में लूटी गई हर देश में लूटी गई हैदर की कमाई अजदार से जुदा हो गया पास समाई कहने के कहा लाश हरम से बाबा की तरह तुम भी जुदा हो गए हमसे ओ बात यतीमी मेरी बहनों पे आई हज़रत से जुदा हो गया पास सहाई मजलूम से मकतल में चला भी नहीं जाता कब खाक पे गिरते हैं उठा भी नहीं जाता आजी की शहादत ने अमर ऐसी झुकाई हज़रत से जुदा हो गया बात संभाली बच्ची ने कहा शाह से कर्ज अपना निभाऊं नजदीक अगर है कोई बस तो मैं जाऊं है अम्मू का कफन लाएगी अम्मू की विदाई हज़रत से जुदा हो गया अब्बास सफारी अब्बास के बच्चों सन शेर मिन्ना रहूंगा मकतल से उठा लाया हर एक तलाशा है अफसोस के अब्बास की हैयत ना उठाई हज़रत से जुदा हो गया अब्बास संभाली खत खाक पे देते थे कदम सीने से जिसके है मैदान में उस शेर के कितने हुए टुकड़े ऐसा जाद न चादर में वो मैयत है उठाई हज़रत से जुदा हो गया जुदाई पे बहुत रोए है बाबा समझाती है रो रो के बच्चों को सकीना अब देखा नहीं कोई भी पानी की दुहाई हज़रत से जुदा हो गया अब्बास सवारी हर मातम सीने में बपा होगा तला इस साल तेरा जाना तो मुश्किल है तकल्लुम है कि मगर फिर को बला तक है रसाई हज़रत से जुदा हो गया अब्बास संभाली बाजार में से कह रही है
अल्लाह मुझे छुपा लो, मुझे छुपा लो, कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो, बाजार में ये जैनब सास कह रही है अब्बास की बहन को हर आँख डूबती है, अम्मा मुझे छुपा लो, बाजार में ये जैनब सास कह रही है मुझे छुपा लो, बताने जिसको बगैर चादर ना महरमों में आए, वो आ गई खुले सर, कत्ले हुसैन से भी दुश्वार ये घड़ी है, अम्मा मुझे छुपा लो, आधार में ये कहना सास कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो, मेरी कैसे कदम बढ़ाऊं इस शहर पे अम्मा में, खुद को कहाँ छुपाऊं, हाथों में लेके पत्थर उम्मत खड़ी हुई है, अम्मा मुझे छुपा लो, बाजार में ये सेना सास कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो, ईमान करबला के आंखों से है जारी, ये सोच कर बदन में लरसा है उसके तारी, बेपर्दा शामियों में बेटी फूल की है अम्मा मुझे छुपा लो, बाजार में ये चलना मुझे छुपा लो, काजी उस दिन तड़प गई थी, सर से छीनी थी चादर जब बिन्त मुर्तज़ा की, वो रात थी अंधेरी ये दिन की रोशनी है, अम्मा मुझे छुपा लो, बाजार में ये सेना सास कह रही है अम्मा मुझे छुपा लो, अभी आंसू लगी बहाने, बाजार का तकल्लुम जैसा असर थकाने, अक्सर वतन में सेना ये कह तू चौकती है अम्मा मुझे छुपा लो, बाजार में सैयदी सैयदी आबाद सैयदी सईद सैयदी आबाद सैयदी नगरी सैयदी आबाद सैयदी आबाद सैयदी आबाद सैयदी सैयद